and major chromosomal abnormalities. So in this topic, in karyotyping, there are three things we need to cover: that how to do culture, or how can we do direct preparation so that we can study the chromosome, and what are the method of binding technique, and at last we will know about major chromosomal abnormalities. Right? Today we'll try to know about the karyotyping procedure. Okay, let's know some basic about the this chromosomal analysis. Okay, chromosomes can be studied in any nucleated body cells in an individual. What what does it mean? That if you want to study chromosome, you have to take a nucleated cell. Without nucleated cell, we cannot study chromosomes, right? So to study chromosomes, we need to take a nucleated cells from an organism. It can be the human or it can be the animal or plant. Sorry. So the sample we need to collect is a peripheral blood sample where we can separate the lymphocyte and we can culture the lymphocyte for 3 days. I hope you know the meaning of the culture. Culture means it's a cultivation, okay, where we can increase the number of the cells. Okay, so first sample, the preferred sample, what we say is a peripheral blood sample. From the peripheral blood sample, we can separate specifically the lymphocyte because it has a unsegment nucleus, well organized nucleus, you can see. Okay, and after that, the once we have isolated the lymphocyte, then we can do the culture process, cultivation process, and this process cultivation can be done for 3 days. Another sample we can take is a skin biopsy. So we can take small piece of the skin tissue, okay, by just cutting down, and we can separate basically the fibroblast, okay, and then we can culture the fibroblast cell for 15 to 21 days. So this is the the sample or the cells that we need to take from the body. So many cells are available, but easily it is the preferred the cells that can be taken so that we can study the chromosome very easily. The peripheral blood sample and then skin biopsy sample. This chromosomal analysis is very important as a prenatal test to study the fetal chromosome. Okay, so here if you want to study the chromosome of fetus, we can take the sample as a choriocentesis or amniocentesis. So choriocentesis, where we can take the choriovirus biopsy, chorion virus tissue, can take it out, or we can take the amniotic fluid. Okay, so choriocentesis help us to know the risk of abortion. The 2 to 3% cases of abortion which can be diagnosed by choriocentesis. Okay, if there is a chromosomal disorder, usually there is abortion process. Okay, amniocentesis, the risk of abortion is 1%. So here if these are the that in the technical errors, okay, technical problem, that when we do choriocentesis, usually the pregnant woman will have the abortion because she has a risk of abortion of 2 to 3%. So but amniocentesis has a risk of about 1% abortion. So we can prefer amniocentesis. We should not do the choriocentesis because it the higher in the rate of abortion is higher in choriocentesis. Okay, so because this is a process, the technique to collect the sample from the pregnant woman, right? So and the collection procedure has a risk of abortion, and this is the risk factor. 2 to 3% is the prevalence cases usually get abortion. 1% get abortion when we go for the amniocentesis process. So why do we do chromosome analysis in fetus? Because the fetus, developing fetus, might have the problem related to the chromosomes, like the less number of chromosomes or more number of chromosomes, or there may be the chromosome structural abnormalities where the chromosome can be there will be deletion or addition in the chromosomes. Okay, so that can be diagnosed in the fetus, and we can take the decision at the time, right time. I hope you have understand.
what is what samples are considered for chromosomal analysis? Is there any confusion? क्या कोई कंफ्यूजन है कि सैंपल क्या होना चाहिए क्रोमोसोमल? नो सर, नो सर। सर Yes. सर एक बार कार्योटाइपिंग, व्हाट इज कार्योटाइपिंग बताना एक बार सर, हिंदी में बताना सर। ओके, कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है, कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि इसमें क्रोमोसोम को, ठीक है, हमें स्टडी करने का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, उसको बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। इसमें हम कैरियोग्राम डेवलप करते हैं, क्रोमोसोम को नंबर वाइज हम अलाइनमेंट करके, ठीक है, उसके पार्टनर क्रोमोसोम को एक साथ रख के और उसके बाद में उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि उसमें कितने क्रोमोसोम हैं। जैसे कि हम कोई भी सोमैटिक सेल्स अगर लेते हैं, लिम्फोसाइट सोमैटिक सेल है, स्किन सेल्स जो फेब्रोब्लास्ट सोमैटिक सेल्स है, तो उसमें कितना नंबर क्रोमोसोम होना चाहिए आपको मालूम है? सोमैटिक सेल्स में कितना क्रोमोसोम होता है? 46 क्रोमोसोम होता है ना? 46 जी हाँ, सर। 22 पेयर्स ऑटोसोमल होता है और लास्ट में जो 1 पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना? वो टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होता है। और ये चीजें हम देखते हैं कि ये 46 क्रोमोसोम है या कम है या ज्यादा है। ये कैरियोटाइपिंग प्रोसेस है, कैरियोटाइपिंग एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्रोमोसोम्स को हम माइक्रोस्कोप में हम उसको देखते हैं, फिर उसके बाद में उसको फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करके उसके पार्टनर जो होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ रखते हैं और उसके बाद में जो ग्रुपिंग किया हुआ था, जो ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग ए में 3 क्रोमोसोम्स होता है, बी में 2 क्रोमोसोम्स होता है, सी में और भी क्रोमोसोम्स होता है। इस तरह से हमने पढ़ा था लास्ट में। तो उस तरह से हमें ग्रुपिंग करना होता है और हमें लास्ट में रिजल्ट में देखना होता है कि क्रोमोसोम का जो पैटर्न है ये नॉर्मल है, इसमें कोई मतलब कि 2 से ज्यादा क्रोमोसोम नहीं है, पेयर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम है तो उसमें हम देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर का क्रोमोसोम 3 होता है, राइट। टर्नर सिंड्रोम है, उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है एक ही होता है, उसमें एक ही एक्स होता है, ना कि डबल एक्स होता है, या तो एक्स वाई नहीं होता है, सिर्फ एक्स होता है। या हम क्लाइंट-पेरेंटल सिंड्रोम अगर देखते हैं तो उसमें 2 ठो एक्स होता है और एक वाई होता है। तो इस तरह से हम ये कैरियोटाइपिंग प्रोसीजर से हम ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम जानकारी कर सकते हैं। तो ओके सर। कैरियोटाइपिंग एक क्रोमोसोम को स्टडी करने का एक प्रोसीजर है, एक टेस्ट है, ठीक है। जी जी सर। तो आप ये कैसे करते हैं? तो यहाँ पे एक इमेज में एक पूरा फ्लो चार्ट में बना हुआ है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। द प्रोसीजर इज गिवन एज, फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं, 8 टिश्यू सैंपल, ए कल्चर इन अ ग्रोथ मीडियम, ठीक है, ये ग्रोथ मीडियम है। इसमें जो आपने माइक्रोबायोलॉजी में न्यूट्रिएंट मीडियम पढ़ा होगा, तो यहाँ पे एक ग्रोथ मीडियम है जिसमें हमने टिश्यू सैंपल जो कि सेल्स को आइसोलेट करके हमने इसमें डाल दिया और ग्रोथ मीडियम भी डाल दिया। तो अब ये कल्चर हो रहा है। इसमें हमने केमिकल एक डाल दिया जो कि माइटोसिस को स्टिमुलेट करता है। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस एक सेल डिवीजन का, हाँ, तो माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन माइटोसिस थ्रू स्टिमुलेट करता है, वो केमिकल हम इसमें डालते हैं। ये माइटोजेन मतलब कि सेल को प्रोलिफरेट कराएगा, सेल को नंबर को इंक्रीज कराएगा, ठीक है। तो एक ग्रोथ मीडियम में क्या क्या डाला हुआ है? कल्चर मीडियम में हमने टिश्यू सैंपल डाल दिया एज अ सेल, फिर हमने एक माइटोजेन डाल दिया एज अ केमिकल जो कि स्टिमुलेट कर रहा है माइटोसिस को। उसके बाद में हमने ये सब मिक्स करने के बाद में इंक्यूबेट किया, कितने दिन के लिए? फॉर 2 to 3 days। इसमें हम जब इंक्यूबेट करेंगे तो जो सेल्स है ग्रोथ मीडियम के प्रेजेंस में, और ये माइटोजेन उसको स्टिमुलेट कर रहा है, उसको डिवाइड होने में, सेल्स को डिवाइड होने में उसको स्टिमुलेट करता है। तो माइटोसिस में जो माइटोजेन है तो सेल्स को पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर टेलोफेज के बाद में एक सेल्स 2 सेल्स में बन जाता है, फिर उसके बाद में उसके भी फर्दर उसके सेल डिवीजन होता है। तो इस तरह से सेल की पॉपुलेशन हम इंक्रीज करा रहे हैं ड्यूरिंग इंक्यूबेशन टाइम। इज इट ओके? Are you able to understand?
यस सर। यहाँ पे इसमें दोबारा से पढ़ते हैं कि एक हमें कंटेनर है यहाँ पे, उस कंटेनर में क्या रखा हुआ है, ग्रोथ मीडियम डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है, ग्रोथ मीडियम, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो विटामिन मिनरल्स हर चीज होता है उस ग्रोथ मीडियम में। उसमें हमने सैंपल डाला और उसके अंदर में एक केमिकल डाला जो कि सेल्स को स्टिमुलेट करता है माइटोसिस होने के लिए। ओके, उस केमिकल को क्या बोला जाता है, माइटोजेन। ठीक है, एक माइटोजेन क्या है, सेल्स को मल्टीप्लाई करवाता रहता है, तो ऐसा वाला केमिकल है। अब ये सब चीज को मिक्स करने के बाद में वी इनक्यूबेट देम फॉर 2 to 3 days। आफ्टर 2 to 3 days व्हाट वी एक्सपेक्ट कि इसमें अगर हमने एक सेल डाला हुआ है तो 2 to 3 days में बहुत सारे सेल बन गया होगा। सेल जो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो गया होगा, वो नंबर इंक्रीज हो गया होगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन एड we need to add a chemical to stop mitosis in metaphase। इसमें एक बाद में एक दूसरा केमिकल हम डालते हैं जो कि जितने भी जो सेल्स है उसको माइटोसिस के बेसिकली पार्टिकुलरली मेटाफेज स्टेज में उसको अरेस्ट करता है। मतलब सेल्स जब डिवाइड होते रहता है तो सब सेल डिवीजन की जो मेटाफेज स्टेज है, उस मेटाफेज स्टेज में सेल्स की डिवीजन को अरेस्ट कर देता है, स्टॉप कर देता है, पॉज कर देता है। मतलब सारे सेल्स डिवाइड होते 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 मेटाफेज में आके रुक जाता है, उसके आगे बाद में एनाफेज में नहीं जाता है, टेलोफेज में नहीं जाता है। राइट, समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, तो जितने भी सेल्स है सब मेटाफेज स्टेज में आके रुक गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम ट्रांसफर द सेल्स टू ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज टू कंसंट्रेटिंग लेयर्स। तो हम इसको क्या है, अब इस तरह का जो सेल्स जो कि उसमें कल्चर में जो सेल्स जो मेटाफेज स्टेज में है, what we need to do, we need to just put the mixer into the test tube। उसको हम टेस्ट ट्यूब में डाला और उसके बाद में हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जो सेल्स है वो बॉटम में आ जाएगा और जो ग्रोथ मीडियम है ऊपर आ जाएगा सुपरनेटेंट में। जैसे हम यूरिन सैंपल को हम करते हैं, सेल्स नीचे आ जाता है, पैलेट में आ जाता है और यूरिन ऊपर आ जाता है जो सुपरनेटेंट है। राइट, या हम होल ब्लड को भी करते हैं तो पैक सेल्स जो है आरबीसी सेल जितने भी नीचे आ जाते हैं, प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। राइट, तो ऐसा ही है कि जो मिक्सर है कल्चर मीडियम का, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया और उससे क्या होगा कि सेल्स जो है कंसंट्रेट होकर एक नीचे एक लेयर बन जाएगा। राइट, नाउ ट्रांसफर टू ट्यूब कंटेनिंग फिक्सेटिव। अब उसको क्या करना है, वो सुपरनेटेंट को हमें हटा देना होगा। जो सेल्स है उस सेल्स को हमें ट्रांसफर करना है किसमें, ऐसे ट्यूब में जिसमें फिक्सेटिव रखा हुआ है। ठीक है, फिक्सेटिव रखा हुआ है जिसमें सेल्स को फिक्स कर देगा, अब उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देगा। ठीक है, राइट, तो हमने फिक्सेटिव में डाल दिया। उसके बाद आया समझ में? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यहाँ तक हमने क्या किया, हमने यहाँ तक कि सेल्स को पहले हमने बॉडी से सेल्स लिया। जैसे पिछले जो स्लाइड में सपोज हमने ब्लड सैंपल लिया है, राइट, उससे हमने लिम्फोसाइट को सेपरेट कर दिया। सेपरेशन मेथड है, एक प्रोसीजर है, उससे हम सिर्फ लिम्फोसाइट आरबीसी को हटा दिया, प्लेटलेट को हटा दिया और डब्ल्यूबीसी में जितने भी अदर सेल्स है, मोनोसाइट, यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, ये सबको हटा दिया और सिर्फ मेरे पास क्या है, लिम्फोसाइट है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, एक कल्चर मीडियम, एक कंटेनर लेना है, उसमें ग्रोथ मीडियम डालना है, कल्चर मीडियम डालना है। ठीक है, और वो सेल्स इसमें डाल देने हैं और उसके साथ साथ क्या डालना है, हमें एक माइटोजेन, एक केमिकल डालना है जो कि माइटोसिस को स्टिमुलेट करता है। राइट, उसके बाद में ये सब मिक्स करने के बाद में हम इंक्यूबेशन करने की जरूरत पड़ेगा और ये इंक्यूबेशन में एक प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टेम्परेचर की हमें एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। बोलिए सर। बोलिए सर, जो स्टिमुलेट करता है माइटोसिस को, उस वो रिजेक्ट कौन सा केमिकल कौन सा यूज करते हैं सर हम? इसमें कोल्चिसिन यूज करते हैं, सॉरी इसमें करते हैं फाइटोजेन, PHA।
फाइट हेमोग्लोबिन, मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, यहाँ पे ये देख सकते हो PHAM, फाइटो हाइड्रोक्लोरोटिन इन एम। ओके सर। एल्यूटिन एम है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये केमिकल है जो कि माइटोसिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, राइट। जी सर। सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे। तो ये सब मिक्स करने के बाद में इंक्यूबेशन किया इसमें। आप इंक्यूबेशन के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें एक और केमिकल ऐड करेंगे, जो कि आप क्या करेगा, जो सेल्स डिवाइड हो रहा है, वो सारे सेल्स जो है एक पर्टिकुलर माइटोसिस के जो फेज है, उस फेज में आके स्टॉप कर देता है, मेटाफेज स्टेज। जो सारे सेल्स डिवाइड होते होते आकर मेटाफेज स्टेज में आकर रुक जाएगा, राइट। जितने भी सेल्स है, जब ये केमिकल जब डालेंगे, तो जितने भी सेल्स है वो सब सेल्स एनाफेज मेटाफेज में आके रुक जाएगा, ठीक है। जो 3 डेज के बाद में हम ये केमिकल डालेंगे, उस केमिकल में ये जो जो उसका प्रॉपर्टी क्या है कि वो सेल्स डिवीजन को स्टॉप करता है। बेसिकली माइटोसिस की जो जो सेल डिवीजन प्रोसेस है, उसको वो पॉज कर देता है, वहां पे पॉज लगा देता है। कहाँ पे पॉज लगाता है? मेटाफेज स्टेज में। समझ में आ गया ये वाला स्टेज? यस सर। मेटाफेज में सेल से मेटाफेज में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और उसके बाद में जो कंसंट्रेटेड जो सेल्स मिलेंगे उसको हम फिक्स करेंगे यहाँ पे बाय पुटिंग इन अ ट्यूब कंटेनिंग फिक्सेटिव। जब सेल्स फिक्स हो जाएगा तो हमें क्या करना है, पुट द सेल्स ऑन माइक्रोस्कोप स्लाइड। दिस स्लाइड में एक स्लाइड लेना है, उस पे हमें उस सेल्स जो फिक्स किया उस पे रख दिया। उसके बाद में उसको स्मीयर बनाया। अब हमें स्टेनिंग करना पड़ेगा। सो एड स्टेन टू एनहांस क्रोमोसोम। तो स्टेनिंग प्रोसीजर से उसको हम स्टेनिंग किया। अब उसके बाद में हम माइक्रोस्कोप में उसको हम देखेंगे। देखने के बाद में यहाँ से हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, एक पिक्चर ले सकते हैं। ये वाला माइक्रोस्कोप सिंपल नहीं है, मतलब कि ये माइक्रोस्कोप क्या है, कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड माइक्रोस्कोप होता है ये, ठीक है। यहाँ पे आईपीस जो है कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड होता है। तो क्या होता है कि कंप्यूटर से उसमें फोटोग्राफ हम क्लिक कर सकते हैं हर फील्ड का। तो इस देखेंगे कि एक सेल में हम फोकस करेंगे और उस सेल में देखेंगे कितने क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और उसको हम फोटो क्लिक करेंगे, और उसके बाद में जो क्रोमोसोम्स होगा, तो सब में उस क्रोमोसोम्स में सारे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग अलग होंगे, इधर उधर होंगे। तो सारे क्रोमोसोम्स को क्या करना है, अलाइन करना है, ठीक है। इस तरह से अलाइन करना है, ठीक है। हमेशा कि इसका पार्टनर कहाँ पे है, इसका पार्टनर कहाँ पे है, ठीक है। उसको फिर अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कट आउट द क्रोमोसोम पिक्चर एंड अरेंज इन कैरियोटाइप। तो ये कैरियोटाइप में इसको अरेंज कर दिया। तो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन अ प्रॉपर ऑर्डर इज ए कैरियोटाइप, ठीक है। ये कैरियोटाइप बन गया। अब इस कैरियोटाइप से, इस कैरियोग्राम से हमें क्या करना पड़ेगा, हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। पहले देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, देखेंगे क्रोमोसोम कितना है। तो पहला चीज हमें ऑब्जर्वेशन मिल गया कि हाँ यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर देखेंगे कि इसमें जो जेंडर क्या है, एक्स और वाई है कि एक्स एक्स है। तो देखेंगे कि एक्स एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये फीमेल का क्रोमोसोम है। तो जेनेटिकली ये फीमेल हुआ, राइट। उसके बाद में देखेंगे कि ये सब कुछ नॉर्मल है, तो लिखेंगे दिस इज ए नॉर्मल कैरियोटाइप, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम आता है कि दो के जगह पे कोई 3 हो जाता है, ट्राइजोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइजोमी में क्या होता है, 3 क्रोमोसोम होता है। कोई पार्टिकुलर क्रोमोसोम 3 ठो होते हैं, ना कि 2 होना चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उस तरह से वो एबनॉर्मलिटीज होगा, तो हम डिफाइन करेंगे कि ये 47 अगर 3 है तो एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 46 जब 47 होगा तो 47 कॉमा, फिर उसके बाद में लिखेंगे कौन सा क्रोमोसोम बड़ा है, तो उसमें लिखेंगे कि 21 वाला है तो 21 लिख दिया,
फिर उसके बाद में एक्स वाई है या एक्स एक्स है वो भी लिख दिया। राइट, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। कौन बता सकता है सर मैं, इसको समझ में आ गया ये? जी सर मेरे को। यस, बताइए बताइए, पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारा टिश्यू सैंपल है, या तो देखो सर हम ब्लड ले सकते हैं या फिर स्किन सैंपल हम यूज करेंगे। उसके बाद जो कल्चर मीडिया वेरी हमारा, गुड, जी सर। सही, अच्छा है, आगे आगे बताइए। सर जो कल्चर मीडिया जैसे सर हमारा न्यूट्रिएंट ब्रोथ हो गया, न्यूट्रिएंट अगार हो गया, उसके अंदर सर कल्चर मीडिया क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी जो लाइफ है उसको आगे रेप्लिकेट रिप्रोडक्शन कराने के लिए, जनरेशन को ज्यादा बढ़ाने के लिए कल्चर मीडिया का हम यूज करते हैं, जिसे ग्रोथ मीडियम कहते हैं। उसके बाद सर उसके अंदर हम जो केमिकल डालेंगे वो स्टिमुलेट माइटोसिस, जिसमें माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, वो ऐसा केमिकल डालेंगे जिसका नाम है PHNM। उसके बाद इंक्यूबेट करेंगे सर 2 से 3 दिन के लिए, PHA/M, फाइटो हेमोग्लोबिन। उसके बाद सर इंक्यूबेट करेंगे हम 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद इसके अंदर सर हम एक ऐसा केमिकल डालेंगे जिससे कि जो जब माइटोसिस की प्रोसेस हो रही होगी तो लास्ट में मेटाफेज पे आकर रुक जाए। जिसके अंदर 4 फेज होते हैं ना सर, तो मेटाफेज वाले फेज पे जाके रुक जाए। उसके बाद सर हम उसके अंदर एक ट्यूब में ट्रांसफर कर लेंगे इसको, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। उसके बाद सर हम इसके अंदर फिक्सेटिव डालेंगे, जो भी जैसे फिक्सेटिव हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो गया, कोई भी फिक्सेटिव हो सकता है। उसके बाद सर हम इसको स्लाइड के ऊपर रखेंगे। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद इसको हम एक स्लाइड स्मेयर बना देंगे। उसके बाद हम इसको स्टेन करेंगे सर, जो हमारी क्रोमो जैसे रेटिकुलिन स्टेन होती है ना सर, ऐसे ही हम, और GMS होती है, वो स्टेन हम कर लेंगे। उसके बाद सर हम आइडेंटिफाई करेंगे माइक्रोस्कोप में, फिर एग्जाम रिजल्ट देख लेंगे सर, चेक कर लेंगे कार्योटाइपिंग हुआ है नहीं हुआ। गुड। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप में जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी एक फोटोग्राफ लेते हैं। उस फोटोग्राफ में क्रोमोसोम्स स्कैटर्ड होगा, एक ये ऐसे इस तरह से अलाइन में नहीं हुआ होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, पार्टनर क्रोमोसोम है, उसको सर्च करके एक साथ रखना पड़ेगा और इस तरह से उसको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। जो आपने इन्हें ग्रुपिंग पढ़ा था क्रोमोसोम का, ग्रुप 1 जो ए है, ग्रुप बी, सी, डी, ई, जो मतलब 5 जो ग्रुप हमने पढ़ा था, वो 5 ग्रुप में हमें उसको सारे क्रोमोसोम को अरेंज करना है और उसके बाद में ऑब्जर्व करना है कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। आई थिंक इतना ही काफी है। इतना आपने याद कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, आपने कैरोटाइपिंग ही सीख लिया। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो हाँ, सब लोग याद कर लेंगे कैरोटाइपिंग का प्रोसीजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीख लिया तो मोलिकुलर वाले लैब में आप काम करने लायक हो जाएंगे। सर PDF शेयर कर दो। हाँ, शेयर कर देते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं इसको एंड करता हूँ मीटिंग को। लोकेश अटेंडेंस ले लेना।